ملزمہ انمول عرف پنکی کی حفاظت کے لیے سخت سیکورٹی پلان نافذ کر دیا گیا۔ 1 SP 2 SDPs اور 3 SHO سمیت 40 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ ملزمہ کی کڑی نگرانی کے لیے 2 شفٹوں میں پولیس اور لیڈی سٹاف کی بھاری نفری مقرر کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ 1 SP 2 SDPOs اور 3 SHO سمیت 40 سے زائد اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کی حفاظت کے لیے سخت سیکورٹی پلان نافذ کر دیا گیا ہے۔ ملزمہ کی کڑی نگرانی کے لیے 2 شفٹوں میں پولیس اور لیڈی سٹاف کی بھاری نفری مقرر کر دی گئی ہے۔ 1 SP 2 SDPOs اور 3 SHO سمیت 40 سے زائد اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لاک اپ، اطراف اور داخلی اور خارجی راستوں کی مسلسل CCTV مانیٹرنگ جاری ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لاک اپ کے اطراف چھتوں پر سنائپرز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بغدادی تھانے کے داخلی اور خارجی راستوں پر اضافی پولیس نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ملزمہ کو فراہم کیا جانے والا کھانا بھی مکمل چیکنگ کے بعد دینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بات کر لیتے ہیں، سلمان سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملزمہ انمول عرف پنکی کی حفاظت کے لیے سخت سیکورٹی پلان نافذ کر دیا گیا ہے۔ 1 SP 2 SDPOs 3 SHO سمیت 40 سے زائد اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ملزمہ کی کڑی نگرانی کے لیے 2 شفٹوں میں پولیس اور لیڈی سٹاف کی بھاری نفری مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملزمہ انمول عرف پنکی کی حفاظت کے لیے سخت سیکورٹی پلان نافذ کر دیا گیا ہے۔ 1 SP 2 SDPOs اور 3 SHO سمیت 40 سے زائد اہلکار تعینات۔ کڑی نگرانی کے لیے 2 شفٹوں میں پولیس اور لیڈی سٹاف کی بھاری نفری مقرر کر دی گئی ہے۔ لاک اپ، اطراف اور داخلی اور خارجی راستوں کی مسلسل CCTV مانیٹرنگ بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لاک اپ کے اطراف چھتوں پر سنائپرز بھی تعینات کر دی گئے ہیں۔ بغدادی تھانے کے داخلی اور خارجی راستوں پر اضافی پولیس نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ سلمان سلیم سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ سلمان، بتائیے گا سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے؟ دیکھیں، بالکل پنکی کا کیس ہے اور پنکی کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کورٹ کے خلاف جو ہے وہ 40 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ 1 SP 2 DSP اور 3 SHO جو ہے وہ سیکورٹی کی نگرانی کریں گے۔ تمام اعلیٰ جو سیکورٹی انتظام ہے ان کی جانب سے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ تمام افراد جو ہے وہ تمام پولیس اہلکار سیکورٹی کے جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے۔ کسی بھی قسم کا کوئی سیکورٹی کے خلاف جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ جن اہلکاروں نے سیکورٹی کے خلاف ان کے خلاف جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے سلمان، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید الاضحیٰ بدھ 27 مئی کو ہوگی۔ چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا۔ زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہوئے۔ چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی، جس میں کراچی، مردان، راولپنڈی، پشاور، سندھ اور دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ 1 ذوالحجہ 1447 ہجری 18 مئی 2026 بروز پیر کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 27 مئی 2026 بروز کو انشاءاللہ ہوگی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے ریڈ لائن BRT منصوبے کا دورہ کرتے ہوئے پیش رفت کا جائزہ لیا اور کہا کہ FWO یونیورسٹی روڈ پر مکس ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے منشیات کے بڑھتے رجحان کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے سخت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ بسیم افتخار کی رپورٹ۔ شہریوں کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی کا عزم۔ ریڈ لائن BRT منصوبے پر تیزی سے کام جاری۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا منصوبے کا دورہ۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ریڈ لائن منصوبے پر FWO تیزی سے کام کر رہی ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر مکس ٹریفک کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ مکس ٹریفک لین اگست تک مکمل کر لی جائے گی۔
तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर में बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं, सिंध भर में बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जो मिक्स ट्रैफिक लेन है वो अगस्त के महीने में हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। शर्जील मेमन ने मंशियात के बढ़ते रुझान को संगीन मसला करार देते हुए कहा कि इसके खिलाफ सख्त इकदामात की ज़रूरत है। एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इसकी रोकथाम के लिए सरगर्म अमल है। ये ड्रग्स का चैलेंज जो है ये बहुत ख़तरनाक चैलेंज है, बहुत सीरियस चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको अभी तक इतना सीरियस नहीं लिया। ये एक पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, पूरे वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, बाकी सूबों की जो गवर्नमेंट्स उनकी भी जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची मुल्क का सबसे मसरूफ तरीन शहर है, यहाँ काम करना एक बड़ा चैलेंज है। शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह 23 मई को किया जा रहा है। कराची की जो आबादी है, कराची की जो डायनामिक्स हैं, कराची की जो चैलेंजेस हैं, कराची में जो इन्फ्लक्स ऑफ लोगों का है पूरे पाकिस्तान से, तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। उसके लिए दिन रात जो है आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं जब काम जो है उस पर ना हो रहा हो। और जिस तरह हमने कहा कि 23 तारीख को इंशाल्लाह ताला शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो जाएगा। शर्जील मेमन ने कंदकोट वाक़े पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि तामीरात के दौरान ऐसे हादसा दुनिया भर में होते हैं। कैमरामैन शाहजेब रज़ा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत सिंध और इदारे तरक्यात कराची के इश्तराक से ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 के तहत अवामी नुमाइश और ओपन हाउस इवेंट का इनेकाद किया गया। मेयर कराची मुअत्तज़ वहाब ने ओपन हाउस इवेंट में शिरकत की। बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट्स ने प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद अरशद खान के मुताबिक ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 शहर के मुस्तक़बिल, शहरी तरक्की और पायदार विजन की जामी मनसूबाबंदी है। मेयर कराची मुअत्तज़ वहाब का कहना है कि कराची की तरक्की और बहाली के लिए मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। शहरी खालिक दीना हॉल में जारी अवामी नुमाइश और ओपन हाउस इवेंट में शिरकत करके अपनी तजावीज़ पेश करें। बल्दियाती इदारों में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। रिटायर्ड मुलाजमीन वाजिबात की अदम अदायगी पर KMC हेड ऑफिस के बाहर अहले खाना के हमरा ईद मनाने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि हाजिर सर्विस मुलाजमीन ने बकायाजात न मिलने पर ईद ऑपरेशन ड्यूटी से इनकार कर दिया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। वाजिबात रुके तो एहतजाज बढ़ गया। रिटायर्ड मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी का मामला संगीन रुख इख्तियार कर गया है। KMC हेड ऑफिस के बाहर मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत और बल्दियाती इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह का कहना है कि अदायगियों के मामले को सिर्फ समरियों में उलझा कर रखा गया है। रिटायर्ड मुलाजमीन कई माह से अपने वाजिबात के मुंतज़िर हैं, जबकि हाजिर सर्विस मुलाजमीन भी शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी अदायगियाँ ना की गईं तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। KMC ने हुकूमत सिंध को एक लेटर लिख दिया, जिस तरह अक्टूबर 2023 में लिखा था, और वो लेटर में ये तहरीर किया कि अगर हुकूमत सिंध ने पैसे जारी नहीं किए तो इस ईद उल अज़हा पे जो है ना वो पेंशनर की जो 3300 पेंशनर है उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहों से टैक्स तो बाकायदगी से काटा जा रहा है, लेकिन बजट में ऐलान करदा तनख्वाहों का इजाफा आज तक अदा नहीं किया गया, जिसके बाइस घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। मुलाजमीन के मुताबिक महंगाई के मौजूदा दौर में बकायाजात की अदम अदायगी ने उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है, और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो ईद ऑपरेशन ड्यूटी देना मुमकिन नहीं होगा। सर जी बिल्कुल नहीं करेंगे, महंगाई इतनी हो गई है, हम बहुत ज़्यादा परेशान आ गए हैं, हद से ज़्यादा। बिलावल भुट्टो ने पिछले साल 12% बढ़ाए थे, जो अभी तक हमारे को नहीं मिले। उल्टा जो अभी टैक्स कट रहा है वो पहले काट रहे हैं, लेकिन हमारा उनको 12% याद नहीं है, हमारा टैक्स याद है उनको। रिटायर्ड मुलाजमीन ने अहले खाना के हमरा KMC हेड ऑफिस के बाहर ईद मनाने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि मुलाजमीन ने खबरदार किया है कि मसाइल हल ना हुए तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में इतवार के रोज़ भी गैस बंदिश बरकरार है। घरों में गैस न आने पर शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों ने शिकवा किया कि गैस तो आती नहीं, लेकिन बिल वक्त पर ज़रूर आ जाता है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ठंडे चूल्हे
LPG दुकानों पर रश और महंगाई से परेशान शहरी। गैस बंदिश ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहर कायद में इतवार के रोज भी गैस बंदिश का सिलसिला बरकरार है, जिसके बाइस घरों में खाना पकाना शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। गैस की अदम दस्तयाबी पर शहरियों की बड़ी तादाद LPG दुकानों का रुख करने पर मजबूर हो गई, जहां सरकारी नरखों के बरक्स LPG मनमाने दामों फरोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 380 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि शहरियों के मुताबिक सरकारी नरखों और मार्केट कीमत में वाज़ेह फर्क मौजूद है। शहरियों का कहना है कि गैस तो आती नहीं, लेकिन बिल वक्त पर आ जाता है। महंगी LPG का इस्तेमाल घरेलू बजट पर इजाफी बोझ बन चुका है, जबकि मुसलसल गैस बंदिश के बाइस वो मजबूरन महंगा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से मेरे ख्याल में साल 1.5 साल पहले 2000-2500 का गैस भरवाता था। अभी इनका जो गैस में भरवाने आता हो ना 5000-6000 का गैस आ रहा है। सही है, अभी कारोबारी बंदा हो, कारोबार का क्या करेगा कि अपना निकालेगा, माल का निकालेगा, कारीगर का निकालेगा, किसका निकालेगा। कभी आती है कभी नहीं आती है भाई, अभी क्या करें। देखो तभी तो भरवाना है, तभी तो भरवाना है। 400 की भरवा लेते हैं, 800 की 2 भरवाते। नाना खाना सब इसमें होते हैं ना बेटा। गैस तो आता नहीं है, अभी पहले 250 का था, अभी 300-400 में चल रहा है। तो हर जगह पे तंदूर पे होटलों में यही चल रहा है। शहरियों ने हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए और LPG की मनमाने नरखों पर फरोख्त का फौरी नोटिस लिया जाए। कैमरामैन अहमद अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21।